بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے روز روز راشد کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی بیوی مجھ سے پردہ کرتی تھی، لیکن میرے دوست نے اصرار کیا تو میں بولا، نہیں یار، یہ بات نہیں۔ دراصل میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، اس لیے انہوں نے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ گھر واپس تو شاید میں لیٹ ہی پہنچوں۔ راشد نے سر ہلا دیا اور بولا، یہ تمہاری مجبوری سچی ہے، اس لیے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ تم چلے جاؤ۔ میرے والدین علیحدہ گھر میں رہتے تھے، جبکہ میں اور میری بیوی آفس کی جانب سے ملنے والے گھر میں رہا کرتے تھے۔ خیر، میں راشد سے جان چھڑوا کر اپنے گھر چلا گیا تھا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ میری بیوی گھر پر موجود ہی نہیں تھی۔ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میری شادی کو تقریباً 2 سال ہو چکے تھے۔ میں جب بھی آفس سے گھر واپس لوٹتا تھا تو میں اپنی بیوی کو اپنے گھر میں پاتا تھا۔ اس کا یوں گھر سے غائب ہونا غیر معمولی سی بات تھی۔ اس لیے میں چوکیدار کے پاس چلا گیا اور بولا، خان صاحب، بیگم کہاں گئی ہیں؟ کچھ بتا کر گئی ہیں؟ چوکیدار بولا، صاحب جی، وہ معمول کے مطابق گھر سے باہر نکلی ہیں، جلدی آ جائیں گی۔ میں تو چوکیدار کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ معمول کے مطابق گھر سے نکلی تھی تو کیا وہ اکثر گھر سے باہر جایا کرتی تھی؟ میں بولا، کیا مطلب خان صاحب؟ وہ کہنے لگا، صاحب جی، ہم تو ملازم ہیں، ہمیں کیا پتا کہ گھر کے مالک کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ جب وہ خود آئیں گی تو خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر میرا دماغ بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ میری بیوی کہاں جا سکتی تھی؟ بھلا 2 گھنٹے یوں ہی بیت گئے۔ پھر راشد کا فون آ گیا اور کہنے لگا، انکل کا چیک اپ ہو گیا ہے؟ میں بولا، نہیں، آج ابو نے جانے سے انکار کر دیا تھا، ان کی کوئی مصروفیات تھی، اس لیے میں گھر واپس آ گیا۔ راشد کی آواز پریشانی میں اتر آئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اب رات تم یہ کہہ کر رہے ہو، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ انکل کا چیک اپ کروانا ہے، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا ہے؟ راشد کی آواز میں غصہ تھا۔ میں بھی بہت پریشان ہو رہا تھا، اسی لیے غصے سے بولا، ابو نے جانے سے انکار کر دیا تھا تو کیا میں زبردستی انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتا؟ تم بھی یار حد کرتے ہو۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میری بیوی کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، کہنے لگی، میں گھر میں نہیں تھی، آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ میں بولا، تم کہاں گئی تھی؟ وہ نظر چرا کر بولی، میں پڑوسن کی طرف گئی تھی، میری بہت دوستی ہو گئی ہے اس کے ساتھ۔ میں نے سر ہلا دیا اور اسے مزید سوال جواب نہیں کیے تھے، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میری بیوی مجھ سے نظریں چرا کر بات کر رہی تھی۔ خیر، اس نے کھانے کا انتظام کیا تو ہم کھانا کھانے بیٹھ گئے تھے۔ کہنے لگی، ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے تھے، کیا ہوا؟ میں اس کی بات سن کر بہت حیران رہ گیا تھا، کیونکہ میرے ابو کو ہسپتال میں لے کر جانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ یہ بات تو میں نے آفس میں بیٹھے بیٹھے ہی کر لی تھی۔
ताकि मुझे राशिद के साथ उसके घर में ना जाना पड़े और उसकी बीवी को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। मैंने तुमसे कब कहा था कि अब्बू को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ? कहने लगी, मैंने आपके ऑफिस कॉल की थी तो मुझे पता चला कि आप अब्बू को अस्पताल लेकर गए हैं, इसीलिए मैं अपने पड़ोसन के पास चली गई थी। मैंने सर हिला दिया। आज नादिया बहुत अजीब सी लग रही थी। मैं उन सब बातों से बहुत परेशान हो गया था। रात भर मुझे नींद नहीं आई थी। चौकीदार की बातें मुझे परेशान कर रही थीं कि मेरी बीवी आखिर कहाँ जाती थी, और फिर मैं इस नतीजे पर पहुंचा था कि मेरी बीवी वाकई ही पड़ोसन के घर ही जाती होगी, क्योंकि मैं उस पर शक नहीं कर सकता था कि मेरी सारा की शादी को महज 2 साल हो गए थे, मगर हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। सारा मेरी चचा की बेटी थी और हम दोनों की मंगनी बचपन में ही हो गई थी। हम दोनों में शुरू से ही बड़ी मोहब्बत और दोस्ती थी। वो तो मेरे बगैर सांस भी नहीं लेती थी। अब तो फिर हमारी शादी हो गई थी, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा था। सुबह जब मैं ऑफिस गया तो राशिद ने मुझे आड़ों हाथ ले लिया था। वो कहने लगा, तुम कल मुझसे झूठ बोलकर अपने घर चले गए थे, जबकि मैं स्पेशल तुम्हारे लिए बिरयानी बनवाई थी। तुम जानते हो क्या, मेरी बीवी ने मुझे कितनी बातें सुनाई कि आपका दोस्त तो आया ही नहीं और आप बिला वजह मुझसे मुशक्कत करवा रहे थे। मैं बोला, भाभी का ख्याल करके नहीं आया था। वो पर्दा करती हैं। जब मैं आपके घर जाता हूँ तो मेरी मौजूदगी में उन्हें चेहरा छुपा के रखना पड़ता है। मुझे उन्हें मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता। राशिद कहने लगा, यार मेरी बीवी सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी में ही पर्दा नहीं करती, बल्कि जब मेरा भाई घर आता है तब भी वो पर्दा करती है। तो क्या मैं अपने भाई को घर पर बुलाना छोड़ दूं? मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला, वो तुम्हारा सगा भाई है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी और तुम्हारी भाभी की लड़ाई हो। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा था और बोला, अरे यार, मेरी बीवी ऐसी नहीं है। बोला, यार तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। बात जब तुम भी मुझे बुलाओगे तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। वो मेरी बात सुनकर खुश हो गया था। मैंने सोचा कि राशिद की बीवी अब उसे मेरी दावत करने से रोक देगी, मगर मैं कहाँ जानता था कि सिर्फ 2 दिन के बाद फिर से वो मुझे अपने साथ घर चलने को कहेगा कि तुम्हारी भाभी ने आपके लिए वाइट कौरमा बनाया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं तो ये सोचकर हैरान होता था कि उसकी बीवी को कैसे पता होता है कि मेरी पसंदीदा डिश कौन सी है। खैर उसने मुझे मदऊ किया तो मुझे साथ चलना ही पड़ा था। ये नहीं था कि पूरे ऑफिस में राशिद की दोस्ती नुक्त मुझसे ही थी। मेरे अलावा भी उसके 3-4 बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर वो उन्हें कभी भी अपने घर लेकर नहीं गया था। जबकि मेरे इनकार करने पर तो वो मेरे मुंह को ही आ जाया करता था। मैं राशिद के साथ उसके घर चला गया था। उसकी बीवी बहुत घबराई हुई सी थी। उसने स्याह रंग का हिजाब पहना हुआ था और चेहरा भी मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था। मैं भाभी की मौजूदगी में
अपनी आंखें नीचे रखता था। खैर, खाना लग गया था तो मैं और मेरा दोस्त खाने के लिए बैठ गए थे। तभी मुझे सारा का ख्याल आ गया था। मैं बोला, यार तुम्हारी भाभी परेशान हो रही होगी, मैं उससे कॉल करके आगाह कर दूं। मुझे वापसी पर थोड़ी सी देर हो जाएगी। मेरी बात सुनकर राशिद को खांसी आने लगी। मैंने जल्दी से उसको पानी का गिलास पेश किया था, मगर फिर भी उसकी खांसी नहीं थम रही थी। फिर वो बोला, अगर तुम छोटी छोटी सी बात पर भाभी को फ़ोन करके बताया करोगे तो उनके दिल से तुम्हारा डर ख़त्म हो जाएगा और उनको ज़रा अपना इंतज़ार करने दो। बस अपने फ़लसफ़े अपने पास ही रखो। हम दोनों में बचपन से ही मोहब्बत है। यह कहकर मैंने सारा को कॉल मिला दी। ऐसा लग रहा था जैसे नादिया का मोबाइल किचन में बजा है, मगर अब आवाज़ थम गई थी। मैंने फिर से फ़ोन कान को लगाया और बोला, नादिया कहाँ हो? उसके गुस्से भरी आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। कहने लगी, मैंने कहाँ जाना है, मैं तो घर में ही हूँ। आप मुझे बताएं कि आप कहाँ हैं। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। मैं बोला, सॉरी, मुझे तुम्हें बताना भूल गया था। दरअसल मैं राशिद की तरफ आया हूँ। मैंने यही सवाल दोबारा दोहराया, और मैंने यहीं से खाना खा लिया है, तुम भी खा लो। ये कहकर मैंने कॉल काट दी और फ़ोन रख दिया था। खाना खाने से फारिग होकर मैं अपने घर आ गया था। मैं अपने घर में दाखिल होने लगा था तो किसी एहसास के तहत एक लम्हे के लिए रुक गया था। मैंने चौकीदार से बोला, खान साहब, बेगम साहिबा आज कहीं गई थी? उसने कहा, जी अभी 20 मिनट पहले ही वापस आई हैं। मैं हैरान रह गया था। मैंने तकरीबन 1 घंटा कबल ही सारा को फ़ोन किया था और वो मुझसे कह रही थी कि मैं घर पर ही हूँ। ना जाने वो मुझसे अपनी बातें क्यों छुपाने लगी थी। मैं अपने कमरे में आया तो वो मुंह बनाकर बैठी हुई थी। मैं उसके रूबरू आकर बैठ गया और बोला, क्या बात है, तुम गुस्से में लग रही हो? आप रोज़ रोज़ अपने दोस्त के घर चले जाते हो। मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। आप तो उसका कहकर कहीं और चले जाते हैं। और मैं उसके चेहरे को गौर से देखकर बोला, इंसान को हर शख्स अपने जैसा ही लगता है। धोखा वो खुद दे रहा होता है और इल्ज़ाम किसी और पर लगा देता है। सारा मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन आप मुझ पर शक करने लगे हैं, इसलिए बता देती हूँ। मैं मदरसे में पढ़ने जाती हूँ। मैंने सोचा कि कुरान पाक को हिफ्ज़ करके आपको बताऊंगी। आपने मुझे मजबूर किया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मैंने फ़ौरन सारा से माफ़ी मांगी। उसने मुझे माफ़ कर दिया और हम हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। घंटी के निशान पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।